السلام علیکم میرے بھائیوں، پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اگر اس پیغام کے الفاظ میں جذبات بھی دوسروں تک پہنچائے جا سکیں تو وہ پیغام میں کہتا ہوں کہ نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے صرف الفاظ محفوظ نہیں ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں وہ جذبات بھی محفوظ ہیں جو آپ تک منتقل نہیں کیے گئے کہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کس جذبے کے ساتھ انسان تک پہنچا رہا ہے۔ اگرچہ وہ جذبات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہیں، وہ انسان کو سمجھانے کے لیے انسانی رویے کے پیش نظر اس جذبات کو نقل کیا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ تو سورہ صف کی میں شروع والی 2-3 آیتیں پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک عادت کو نہایت ناپسند قرار دیا ہے اور ایک مثال دی ہے انسان کے مزاج میں اس عادت کو تعمیر کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، زمین اور آسمان کے پورے نظام کو دیکھ جو میری اتباع کر رہا ہے، جو پورا دن سے رات تک تم دیکھتے ہو کائنات کے نظام میں ایک بہت ہی ترتیب ہے کہ جو میری تسبیح کر رہا ہے، میری اتباع کر رہا ہے اور وہ خاموشی سے اتباع کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، افسوس ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے انسان، تو وہ باتیں کیوں کرتا ہے کہ جن پر تو عمل نہیں کرتا؟ یعنی کہ تیری اتباع میں صرف باتیں ہی باتیں ہیں، قصے ہی قصے ہیں، کہانیاں ہی کہانیاں ہیں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، یعنی صرف باتیں ہیں تیری زندگی میں، عمل خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عادت بہت ناگوار ہے کہ انسان باتیں کرے اور عمل کچھ نہ کرے۔ یعنی یہ خالی باتیں اس قدر بری عادت ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تسکین دینے کہ انسان ان باتوں سے اپنی روح کو تسکین دینے کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے اور عملی ظہور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ عملی ظہور کے حوالے سے اس قدر پختہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان تک سے بے پرواہ ہو کر لڑتے ہیں اور وہ یکجا ہو کر اللہ کی اطاعت میں اس طرح سرگرداں ہوتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی دیوار، یعنی سیسا پلائی دیوار کہ جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، ایسا عمل وہ رکھتے ہیں، ایسا ارادہ رکھتے ہیں، ایسی استقامت رکھتے ہیں۔ اور سیسا پلائی دیوار ہمیشہ خاموش ہوتی ہے۔ انسان کا کردار بولنا چاہیے، انسان کی زبان نہیں۔ اگرچہ انسان کو فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرتا ہے، دوسرے تک پیغام پہنچاتا ہے، لیکن اگر انسان صرف انہی چیزوں میں لگا رہ گیا تو اصلاح نہیں ہو سکتی، تو انسان خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ تو جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں تو اپنی پوری زندگی پر سوال کھڑا کر کے بیٹھ گیا کہ ہم بھی روز و شب میں باتیں کرتے ہیں، اوے جاؤ گھر جاؤ، میں کام کر رہا ہوں تھوڑا سا، جاؤ، میں آ رہا ہوں 10 منٹ تک، جاؤ۔
उमर मैं कह रहा हूं जाओ। उनको पकड़ नहीं सकता, इनको ले जा, मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट तक, मैं काम कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। अच्छा ले जाना भाई, छोटे हैं ये। पूरी जिंदगी पर मैं अपने सवाल खड़ा करके बैठ गया कि हम रोज़ो शब में कुरान मजीद अगरचा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे रोज़मर्रा के मामलात में हम अपने किरदार को बेहतर से बेहतर करने पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। नबी अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान कर लिया, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के चंद बोल बोल लिए, जो कि ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि हम उस इल्म को अमली जामिया नहीं पहना रहे, चाहे उस पर फिक्र कर रहे हैं। यानी अगर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अपनी सीरत में बहुत अच्छे मामलात किए हैं, तो मैं वो बयान करके क्यों तस्कीन हासिल कर रहा हूँ? मैं अपनी रोज़मर्रा के मामलात में उनको अमली ज़हूर क्यों नहीं दे रहा? तो अल्लाह ताला ने ये इंसान की ज़िंदगी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐ इंसान, क्यों तू बातें करता रहता है? तेरी ज़िंदगी क्यों अमल से खाली है? क्यों तू इस चीज़ पे गौर नहीं करता कि तुझे अमल करना है इस ज़िंदगी में? ये बातों वाली आदत, ये किस्से कहानियों वाली आदत तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैंने सोचा कि अभी हम इन चीज़ों को रोकते हैं, बातचीत को रोकते हैं, इसको अभी इस आदत पर पाबंदी लगाई जाए और कुछ अमल की तरफ तवज्जो दी जाए, खुद के खामोश रहकर इस्लाह करके अपने अमल के ज़रिए दावत दी जाए। देखिए, हम अल्लाह ताला से ना कभी अपने दिल का हाल नहीं बयान करते। कितने अफसोस की बात है कि हम इंसानों से अपने हाल बयान करते हैं, जबकि अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान के इंसान होने का तकाज़ा है कि वो अल्लाह ताला से अपना हाल बयान करे, अपनी तकलीफ़ों का इज़हार करे, क्योंकि यही चीज़ तो अल्लाह ताला को खालिक होने का क्योंकि यही चीज़ तो इंसान के कमज़ोर होने का और खालिक मालिक होने का एतराफ़ है कि एक कमज़ोर इंसान अपनी उन कमज़ोरियों पर उस ताकतवर ज़ात के आगे अपनी झोली फैलाता है। वो अपनी 5 वक़्त नमाज़ों में, अपने रोज़े के ज़रिए उस अल्लाह ताला से, उस खालिक से, मालिक से हिम्मत तलब करता है। वो हर वक़्त दुआ गो रहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे एक अच्छा इंसान बना, हर दिन अच्छा बना, और हर दिन मेरा किरदार अच्छे से अच्छा हो, लोगों के लिए खैर से खैर के मौके मैं पैदा करता जाऊं, और इसी तरह मेरी मौत वाक़ई हो जाए। दुनिया में रहते हुए मेरी ज़िंदगी किसी इंसान के शिकवे के बोझ के साथ अल्लाह ताला के आगे पेश मेरी ज़िंदगी किसी इंसान के शिकवे के बोझ के साथ अल्लाह ताला के आगे पेश ना की जाए क़यामत के रोज़। मैं तो यही चाहता हूँ। इंसान अपनी नमाज़ में अल्लाह ताला के आगे रोए, गिड़गिड़ाए कि मैं या अल्लाह बंदा हूँ, तू तो खालिक है, तू तो तमाम मसाइल का हल करने वाला है, तू ही बादशाह है, तू ही वसाइल का, असबाब का मालिक है।
ये यकीन जब हम कर लेंगे और इस यकीन के लिए जो अमल का तकाजा है उस पर भी हम चल पड़ेंगे तो ये यकीन कामिल होगा। वो रब की तरफ से आने वाली मुश्किलें, वो तकलीफ़ें हमारी आजमाइश हैं कि हमारा रब से रिश्ता किस दर्जे का है। क्या ये रिश्ता इतना कमज़ोर है कि थोड़ी सी तकलीफ़ पर मुंह मोड़ के चला जाता है, रब की ज़ात को भुला देता है, या ये रिश्ता उस दर्जे का है कि इस इंसान को हर तरह की तकलीफ से दो चार कर लिया जाए तो ये रब की अताअत से हटने वाला नहीं। ये किरदार वो है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अगर औरत कि ये किरदार वो है जो अल्लाह ताला से इस कदर रिश्ता मजबूत कि ये वो ज़ात है कि जिसका अल्लाह ताला की ज़ात से इतना रिश्ता मजबूत हो चुका है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार का अमली जामा दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस रब के साथ अपने रिश्ते की एक मिसाल कायम की कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आजमाइश आई, आप खड़े हुए, आपने लब्बैक कहा। ये मुश्किलें, ये मुसीबतें इंसान का रब से रिश्ता वाज़े करती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरा वालिद प्यासा हो और वो मुझसे पानी मांगे और मैं अपने वालिद को उस वक्त पानी ना पिलाऊं और बाद में जब उसकी प्यास का तकाजा ही नहीं है मैं पानी लेकर खड़ा हो जाऊं तो बेमायनी। अगरचा रब की ज़ात उस वालिद की मिसल नहीं है, लेकिन हमारी ज़ात उस बेटे की ज़ात की तरह होनी चाहिए कि जो शर्मिंदगी से दो चार हो। अगरचा हम अल्लाह ताला की इबादत में, अहकाम में देर कर देते हैं, लेकिन उस देर के अंदर हमारे अंदर शर्मिंदगी शामिल होनी चाहिए, मायूसी शामिल होनी चाहिए, अफसोस शामिल होना चाहिए। जबकि वो रब की ज़ात तो बेनियाज है, ये वालिद की मिसाल से भी वो बेनियाज है। ये तो एक समझाने के लिए है कि इंसान अपनी जगह पर अल्लाह ताला के यहाँ कितना सुरखुर, कि इंसान अपनी जगह देखे कि वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, उसके अहकाम के लिए, उसकी हदूद के लिए क्या कुछ पेश करता है अल्लाह के आगे। इंसान की जिंदगी उसके नताइज के लिए मुकम्मल गवाह है। आप अपना नतीजा देख सकते हैं, मैं अपना नतीजा देख सकता हूँ। क्या हम अपनी जिंदगी से, क्या हम अपने मामलात से तसल्ली रखते हैं, अच्छे नताइज की उम्मीद रखते हैं कि मैं अल्लाह की हदूद के लिए, अल्लाह के अहकाम के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसकी मोहब्बत के चंद जर्रे जो पेश कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, या सिर्फ बातें हैं। इस आयत ने मुझे अंदर से तोड़ा भी, झंझोड़ा भी, कुछ समझाया भी कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। खुदा का कलाम मुकम्मल बेनियाज होकर बात करता है इंसान के लिए, इंसान के किरदार के लिए, उसकी सीरत के लिए जो चीज़ बेहतरीन होती है कुरान मजीद में उस बेहतरीन चीज़ की दावत दी जाती है कि ए इंसान तू ऐसा कर तो तेरी सीरत में निखार पैदा होगा।